Hello students, how are you? Welcome in accountancy class and I hope you are well and safe at your home and you are studying regularly and taking the advantages of this time. So let's start our new video, and in this video we are studying the accountancy chapter number 3, accounting principles. In last video I explained that the need why accounting principle is needed and what is the meaning of accounting principle. So today we will start our next topic, kinds of accounting principles and basic accounting concept. Kinds of accounting principles or basic accounting concepts are same. Basic accounting concepts, that means that are the fundamental ideas or basic assumptions and basic rules which are underlying for to the theory and practices of financial accounting, which can developed by the अकाउंटिंग प्रोफेशन. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेसिकली फंडामेंटल आइडियाज होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, कुछ ऐसी बेसिक अजम्पशंस जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं एंड बेसिक रूल्स विच आर फॉलोड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. किस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते समय हम उनको थ्योरी उन रूल्स को किस तरह से फॉलो करते हैं, किस तरह से हम उनकी बेसिक अजम्पशन को लेकर के अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. ऑल आर दीज कॉल्ड बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट. बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं वो हमारी अकाउंटिंग की एक फाउंडेशन होते हैं. फाउंडेशन मीन्स नींव. देखो, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट अगर किसी भी पर्सन को क्लियर होंगे कि हमने किस पोजीशन में कौन सा बेसिक कंसेप्ट यूज करना है, जो बेसिक आइडिया बेसिक रूल हमने यूज करना है, तो हमारे अकाउंट के अंदर जो है वो सिमिलैरिटी आएगी, एक रूपता आएगी. एंड दिस प्रोसेस बिकम द स्पेसिफाइड प्रोसेस एंड इट इज acceptable by the law. So how many principles are followed in our accounting? There are total 13 accounting concepts and assumptions. There are total 13 accounting concept and accounting assumptions. So number 1, basic entity concept. Number 2, money measurement concept. Number 3, going concern concept. Number 4, consistency concept. Number 5, accrual concept. Number 6, accounting period concept. Cost concept or historical cost concept. Matching concept, dual concept and prudence concept. There are total 13 concepts and we will study these 13 assumptions or concept one by one. So first of all, we come on our first accounting concept, that is called business entity concept. According to this concept, business is a separate unit from its owner. That means Ramlal is a person who started a business organization. His business organization is separate from Ramlal. Ramlal is separate person and his business organization is separate. So Ramlal maintain separate set of books of accounts of his business, and when the owner invest their capital in a business, then in a business that is a liability. business के लिए वो क्या है? liability है. जैसे ऑनर ने अपने बैंक अकाउंट से 1 लाख 10 लाख रुपीस विड्रॉ करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको हमने बोला बिजनेस के लिए वो क्या है? ऑनर की कैपिटल. और बिजनेस उसको क्या कंसिडर करेगा? एज ए लाइबिलिटी. वो जो लाइबिलिटी जो रामलाल की जो कैपिटल थी, जो उसने अपने बैंक से निकाल के मनी इन्वेस्ट की थी,
जो बिजनेस है वो उसको फ्यूचर में पे करेगा। वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लायबिलिटी है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और उसी तरह से उस कैपिटल पर अब बिजनेस जो है रामलाल के मनी को यूज कर रहा है, उसे उस कैपिटल पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस एंटिटी के पर्पस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस जो है ट्रीट किया जाता है। सिमिलरली अगर रामलाल उस बिजनेस की यूनिट में से अपने प्राइवेट पर्पस के लिए कुछ मनी को विड्रॉ करता है तो वो एज ए ट्रीटेड ड्रॉइंग्स ट्रीट किए जाते हैं। ड्रॉइंग्स ट्रीट मीन्स डिक्रीज ऑफ कैपिटल, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो बिजनेस यूनिट के लिए एक इनकम होगी। सो बी केयरफुल, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट टेल दैट द single owner in a sole proprietorship, owner is the separate, management is the separate, and creditors are the separate from the business unit. Business is separate, owner is separate. So our next fundamental concept is money measurement concept. In last chapter you studied the accounting is the art of recording, summarizing of accounting transaction which are measurable in terms of money. According to that definitions, money measurements concept only which transactions are capable to measure in terms of money. बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मनी की मेजरमेंट में इजीली हो सकती हैं, only these are recorded in the business set of books of accounts. जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड हैं, मनी में मेजरमेंट की जा सकती हैं, उन्हीं को ही हम बिजनेस की जो अकाउंट्स की बुक उन्होंने मेंटेन कर रखी हैं उन्हीं में उनको रिकॉर्ड करेंगे। एंड विच इवेंट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जो इवेंट बिजनेस का तो है रिलेटेड टू द बिजनेस बट इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, विल नॉट बी रिकॉर्डेड विद ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर एक बिजनेस यूनिट अपनी अकाउंट्स की बुक में फेयर मीन्स ट्रूथनेस, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई डिग्री की एक्यूरेसी को मेंटेन करना चाहता है तो विच ट्रांजैक्शन विच इवेंट आर नॉट एबल टू मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, employee go to the strike and at that time firm earn loss, so this loss is due to strike की वजह से लॉस हुआ। जैसे अभी कोविड-19 है, सारी इंडस्ट्रीज सारे बिजनेस जो है शट डाउन पड़े हुए हैं। इससे क्या हो रहा है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो नहीं रही, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नहीं हो रही, तो दैट मीन्स उनको हम बिजनेस की टर्म्स में मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जब भी हमारा बिजनेस ओपन होगा उसी से उसकी मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स इन 2-3 मंथ्स की जो ट्रांजैक्शंस होंगी बिजनेस की जो बंद पड़े हैं उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। That is called money measurement concept. Third is going concern concept. Here going concern concept का मीनिंग ये है कि बिजनेस जब भी एक पर्सन या सोल प्रोप्राइटर या शेयर होल्डर या पार्टनर्स कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो इस व्यू से स्टार्ट करते हैं कि दैट इस बिजनेस विल एग्जिस्ट और कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन ए फ्यूचर, कि जो हम आज बिजनेस शुरू कर रहे हैं ये नहीं कि हम 1 ईयर आफ्टर द 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर आफ्टर 10 ईयर we will close down, we will shut down. No, it is just when they start their business and business is starting it on that assumptions that business will exist. जो business है वो long term के लिए run करता रहेगा, हम उसको grow करेंगे। and इसी कंसेप्ट के बेस पर जो बिजनेस की फिक्स एसेट्स होती हैं, आपने बेसिक टर्म्स में पढ़ा था फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं, विच आर फॉर लॉन्ग पीरियड। जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड की जाती हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स जो जिस कॉस्ट पर हमने उनको
परचेज किया होता है, दैट मनी वी पे ऑन द टाइम ऑफ परचेज, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। तो फिक्स एसेट्स को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर जो है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, और टाइम टू टाइम जो हम उसका यूज करते हैं और उनकी वैल्यू में जो डिक्लाइनिंग होती रहती है, उनकी वैल्यू में जो कमी आ जाती है, जो डिक्रीमेंट आता है, जो डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वो हम डेप्रिसिएशन उसको चार्ज करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में से, ओरिजिनल कॉस्ट में से उस डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है, बिकॉज वी इन थॉट इन आवर माइंड दैट our business is going on regularly, so that according to this concept जो कॉस्ट होती है फुल फिक्स एसेट्स की या मशीनरी की, हम कभी भी कंप्लीट उसको एक्सपेंस नहीं मांगते। ये नहीं कि हमने एक ईयर में 5 लाख की मशीनरी परचेज की तो 5 लाख रुपीज हमारा उस ईयर जो है एक्सपेंस हो गया। नो, दैट इज आवर कैपिटल। वो हमारी एक फिक्स एसेट्स बन गई है, मशीनरी है, वो हमारे बिजनेस के अंदर कई ईयर्स तक हमारे को जो है बेनिफिट करेगी, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करेगी। उसको हम एक्सपेंस ट्रीट ना करके हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, और उसको हम एज ए एसेट जो है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में शो करते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। सो सेम करंट एसेट्स जो हैं उसमें ट्रीट की जाती हैं, और फिक्स एसेट जो होती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कैन नॉट बी मेड अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाउ फोर्थ अकाउंटिंग कंसेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मीन्स according to going concern, when business owners start this business for indefinitely time period, कोई भी बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस को लॉन्ग पीरियड के लिए स्टार्ट करता है, वो कंटिन्यूसली गोइंग चलता रहता है। सो अब अकाउंटिंग बिजनेस तो लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगा, बट एक्चुअल जो ट्रू रिजल्ट बिजनेस का कैलकुलेटेड किया जाता है, कंप्लीट रिजल्ट जो उसका काउंट किया जाएगा कि व्हाट इज हिज फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट आर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ट्रू प्रॉफिट, ट्रू रिजल्ट कैन बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ वाउंड अप और शट डाउन ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस को पूरा शट डाउन किया जाता है तभी हमें उस बिजनेस के ट्रू रिजल्ट के बारे में पता चलता है। अब हमारा बिजनेस क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए हमने सेटअप किया है, तो बिजनेस ओनर अपने उस लॉन्ग पीरियड तक कब तक की वेट करेगा। सो ही वांट टू द हिज प्रॉफिट, हिज बिजनेस प्रॉफिट एट अ इक्वल और फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल। जो बिजनेस ओनर है वो इक्वल टाइम इंटरवल पर अपने प्रॉफिट को और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है। तो फॉर दिस वर्क ही वांट टू फॉर लॉन्ग पीरियड, तो लॉन्ग पीरियड में अगर प्रॉफिट को एसरटेन किया जाएगा, लंबे टाइम के बाद एसरटेन किया जाएगा, तो ओनर के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, और जो ओनर है वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट जो है इक्वल टाइम पीरियड इंटरवल में उसको जानना चाहता है। तो इक्वल टाइम पीरियड को जानने के लिए वो एक टाइम पीरियड को फिक्स कर लिया जाता है, टाइम पीरियड को फिक्स कर लिया जाता है, एंड दिस टाइम पीरियड बिलोंग टू 12 मंथ, 6 months and 24 months. It depends on the owner's situation, or maybe in the according to the business law there are only 12 months. Maximum 12 months are verified for accounting period concept, and this period is calculated on 1st April to 31st March. तो इसी के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी बिजनेस ऑनर को क्या करना होता है, अपने अकाउंट्स को 1 अप्रैल को स्टार्ट करके 31 मार्च तक 1 ईयर के टाइम पीरियड के इंटरवल में उसको शट डाउन करना होता है। और इंटरवल ऑफ टाइम में ही फाइंड ही ascertain his financial position and profit of the year. Next is the cost concept or historical cost concept. Cost concept अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न पर स्टार्ट किया जाता है, तो उसी बेस पर
assets are recorded in the books of accounts at the price it was acquired. तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के साथ साथ कॉस्ट कंसेप्ट हम तभी उसी बेस के अकॉर्डिंग जो एसेट्स परचेज की जाती हैं उनको उन्हीं प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब जिस प्राइस पर हमने उसको परचेज किया है. और ये परचेज हमने कब किया? मे बी इन 2020 वी परचेज वन एसेट्स, इन 2010, 2012. ये एक्वायर्ड कॉस्ट जो होती है वो पास्ट से रिलेटेड करती है. तो ये कॉस्ट जो है पास्ट से रिलेटेड करती है, तो इसमें so that it is called historical cost, and this cost is the basis of valuation of assets in the financial position. For example, in 2010 a business owner purchased a machinery for 3 lakh. 2010 में वो 3 लाख की परचेज की थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसकी वैल्यू डिक्रीज होती गई क्योंकि यूज के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, एंड नाउ इट्स वैल्यू इज 1,50,000. बट when the owner go to the market to purchase this asset, that cost is rupees 7 lakh. So ये in accounts of in books of accounts that machinery is recorded at 3 lakh and depreciation is subtracted year to year, and its current value show in the business financial position is 1,50,000. तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर उस एसेट की वैल्यू 1,50,000 से आ रही होगी और उसको हमने 3 लाख से रिकॉर्ड किया, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज रिकॉर्डेड टू पास एंड दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. सो लेकिन आज उसकी न्यू मशीनरी की वैल्यू क्या है? 7 लाख है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट. अब इस कॉस्ट कंसेप्ट में कुछ जो है जस्टिफिकेशन भी लिए गए हैं. जैसे सबसे पहला है मार्केट वैल्यू. अब वो जो मशीन हमने 3 लाख की 2010 में परचेज की थी, आज जिसकी वैल्यू 1,50,000 है, वो तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करके एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस मशीन की, उस एसेट की जो मार्केट वैल्यू है, वो जो करंट वैल्यू है, उसको कोई भी एक्सपर्ट एसर्टेन नहीं कर सकता. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. And second justification is the market value of the assets change time to time. जो मार्केट वैल्यू होती है एसेट्स की वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है. जैसे मैंने कहा कि अब सेम मशीन को अब हम परचेज करने जाएंगे तो दैट्स वैल्यू इज 7 लाख रुपए. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक दम, हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते. थर्ड जस्टिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बिजनेस रन फॉर लॉन्ग पीरियड. हम गोइंग कंसर्न के बेस पर क्या कर रहे हैं? बिजनेस हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए रन करेगा, तो वो जो एसेट्स है वो हमारा साथ दैट एसेट्स इज यूज्ड इन आवर बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड. तो वो मशीन हमारे को लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिशियल होगी, हमारे बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए प्रॉफिट अर्न करवाएगी. दैट इट इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. Sixth concept is dual aspect concept. Important aspect, dual aspect. Dual means two parts. Each coin has each and every coin has two poles. So head and tail same. Every transaction, in business, monetary transactions are recorded, and every business transactions having dual aspect. जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. एक से वैल्यू इंक्रीज होती है और एक से वैल्यू, एक ही ट्रांजैक्शन है उसका एक इफेक्ट जो है हमारे बिजनेस पर इंक्रीज कर रहा है एक चीज को, और सेकंड को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. दैट इज कॉल्ड हैविंग ड्यूल एस्पेक्ट. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल वी परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर पार्टी. कॉस्ट पर कैश में परचेज करें या क्रेडिट पर परचेज करें तो क्या होगा? कैश पर परचेज किया है तो गुड्स वी विल परचेज एंड दैट गुड्स कम इन आवर बिजनेस, दैट मीन्स गुड्स इंक्रीज एंड वी पे द मनी टू द पार्टी, दैट मीन्स कैश इज डिक्रीज. सो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव ड्यूल एस्पेक्ट in opposite direction, and that means that transaction affects at least 2 accounts. तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो एटलीस्ट
एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट्स को तो अफेक्ट करेगी ही करेगी, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। और जिस सिस्टम पर, ऑन द सिस्टम ऑन विच दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। जिस प्रिंसिपल पर इस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट आर कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। दैट मीन्स according to double entry system, each and every transactions two aspect affected each other in opposite direction. Opposite direction means one will increase and one will decrease. So that's why, and this equation is ultimately each and every, after the each and every transaction, this equation verify the trueable. Assets is equal to capital plus liabilities, or capital is equal to assets minus liability. I explain this equation with the help of example. For example, a business owner has 20 lakh rupees capital, and after the end he took a loan from 1 lakh rupees from bank, and what is the value of assets is equal to 20 lakh capital plus, that means 21 lakh. So I hope you understand this topics, this aspect, and I will explain next concept in the next video. So be safe, stay home, and take advantages of your time and study regularly. Thank you.